Hello guys, welcome back to Prepstan YouTube channel. My name is Mohammad Akbar and I am back with another brand new video. Today we are going to start most repeated MCQs for PPSC and FPS exam preparation. So let's get started. Question number 1. Name of the first person who received Nishan-e-Haider, and the answer is Captain Raja Sarwar. Question number 2. Name of the first lady Major General in the Pakistan Army, and the answer is Dr. Shahida Malik. Question number 3. Name of the first Governor General of Pakistan, and the answer is Quaid-e-Azam. Question number 4. Name of the first President of Pakistan, and the answer is Iskandar Mirza. Question number 5. Pakistan and China connect with Dash Pass, and the answer is Khanjarab Pass. Question number 6. Asia covers a land area of the world is dash percent, and the answer is 30%. Question number 7. Dash is the smallest and fastest planet, and the answer is Mercury. Question number 8. The smallest bird is, and the answer is hummingbird. Question number 9. Largest animal in the world is dash, and the answer is blue whale. Question number 10. The Khyber Pass links which two countries, and the answer is Afghanistan and Pakistan. Question number 11. Largest museum in the world is in dash country, and the answer is USA. Question number 12. Diamond is the form of dash, and the answer is carbon. Question number 13. If 16 men complete work in 10 days, how much days required completing work by 8 men? And the answer is 20 days. Question number 14. If 45% student fail and 550 pass, total number of students, and the answer is 1000. Question number 15. Surah without Bismillah, and the answer is Surah Toba. Question number 16. Longest river of the world, and the answer is Nile. Question number 16. Longest river of the world, and the answer is Nile. Question number 17. Largest desert of world, and the answer is Sahara Desert. Question number 18. Largest island of world, and the answer is Greenland. And question number 19. Largest ocean of the world, and the answer is Pacific Ocean. Question number 20. Country with the largest area in the world, and the answer is Russia. Question number 21. The highest point of the Khyber Pass is dash. And the answer is Landikotal. 22. Dash country has the oldest anthem in the world. The answer is Japan. Here you can see the flag of Japan. 23. The first railway line was laid in dash country. And the answer is England. Here you can also see the flag of England. 24. The first constitution of Pakistan was made in dash year. And the answer is 23 March 1956. Question number 25. There are dash members of SAARC. And the answer is 8. SAARC stand for South Asian Association for Regional Cooperation, और ये 8 ममालिक से मिलकर बनी है, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका हैं. 26. The currency of Indonesia is dash. And the answer is rupiah. You can also see some Indonesian currency notes on the screen. 27. The world's highest mountain is in dash country, and the answer is Nepal. एवरेस्ट दुनिया का बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिला है, जिसकी ऊंचाई 29,032 फीट है. 28. The headquarter of Red Cross is in dash. And the answer is Geneva. 29. World Trade Organization was established in dash year. And the answer is 1995. Question number 30. 3 May is observed internationally as dash. And the answer is Press Freedom Day. 31. The highest part of the earth is dash.
एंड द आंसर इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कोई एक पहाड़ नहीं है जो किसी एक मुल्क में वाक़ है, बल्कि एक पहाड़ी सिलसिला है जो मुख्तलिफ कंट्रीज में फैला हुआ है, और मुख्तलिफ कंट्रीज में आप उसकी ऊंचाई देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई नेपाल में है 29,032 फीट, जिसमें कि हर साल सैकड़ों लोग इस पहाड़ी को सर करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। 33 द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज डैश। एंड द आंसर इज मैरियाना ट्रेंच। ये समंदर के अंदर एक तरह का गड़ा है जिसकी गहराई 11,035 मीटर्स है। अगर आप में से कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में मैरियाना ट्रेंच विजिट करना चाहता है तो आप जापान से अपना सफ़र का आगाज कर सकते हैं। 34 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज डैश डे। एंड द आंसर इज अर्थ डे। 35 येलो सी लाइज बिटवीन डैश कंट्रीज। And the answer is China and Korea. 36 the smallest sea of the world is dash। And the answer is Baltic Sea, जिसके किनारे पर स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क जैसी कंट्रीज वाक़ हैं। 37 डैश कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइसलैंड्स। And the answer is Indonesia. Here you can see the city view of Indonesia, and here you can see the flag of Indonesia. 38 dash country is called land of thousands lakes। And the answer is Finland, most beautiful country in the world, and you can also see the flag of Finland. 39 dash country is called land of golden fiber। And the answer is Bangladesh. Here you can see the Bangladesh on the world map, जो कि पूरी तरह इंडिया से गिरा हुआ है, and also you can see the flag of Bangladesh. Question number 40 Emirates is an airline of dash country। And the answer is UAE. Here you can see the flag of UAE. Question number 41 Qantas is an airline of dash country। And the answer is Australia. Here you can see the flag of Australia. 42 The first Nobel Prize was awarded in dash year। The answer is 1901। जी हाँ, दुनिया का पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया। 43 इतिहाद एयरवेज इज एन एयरलाइन ऑफ डैश कंट्री। एंड द आंसर इज UAE। यू कैन आल्सो सी द फ्लैग ऑफ UAE। 44 द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। The answer is Asia। यहाँ सब कॉन्टिनेंट्स को कलर्स की मदद से डिफरेंशिएट किया गया है, और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ऐसी दूसरी कंट्रीज आती हैं। 45 The Earth's surface is divided in dash continents। And the answer is 7। जी हाँ, दुनिया के इस पूरे रकबे को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एंटार्क्टिका का इलाका आता है। 46 द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। एंड द आंसर इज अफ्रीका। 47 द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। And the answer is Australia. 48 the Earth's smallest ocean is dash। The answer is Arctic Ocean। Here you can see the different oceans on the map। आर्टिक ओशन को सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि चाइना और अमेरिका के दरमियान आता है, जिसमें अक्सर आइलैंड्स को लेकर इन दोनों के ममालिक के दरमियान जंग भी छिड़ती रहती है।
49. The world's largest lake is dash. The answer is Lake Superior. सबसे पहले आ जाता है कैस्पियन सी। ये तो एक समंदर है, तो लेक्स की बात करें तो उसके बाद पहले नंबर पर जो लेक आते हैं लेक सुपीरियर, उसके बाद आते हैं लेक विक्टोरिया और बाद में दूसरी लेक्स। यू कैन ऑल्सो सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ लेक सुपीरियर। द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। एंड द आंसर इज सहारा डेजर्ट। जी हाँ, ये वही डेजर्ट है जिसके बारे में हम अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं और जिसके बारे में ये भी मशहूर है कि अगर इसमें पूरे बरतानिया को रखा जाए तो शायद वो भी नजर ना आए हमें, क्योंकि ये इतना बड़ा डेजर्ट है जो किसी एक मुल्क में नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ है, जिसमें अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान और मुख्तलिफ कंट्रीज आ जाती हैं। 51. द वर्ल्ड वॉर वन वाज बिगिन इन डैश ईयर। एंड द आंसर इज 1914। ये जंग 1914 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के दरमियान स्टार्ट हुई। 52. वर्ल्ड वॉर वन वाज एंड इन डैश ईयर। एंड द आंसर इज 1918। 52. वर्ल्ड वॉर वन वाज एंड इन डैश ईयर। अगर आप कंप्लीट फोकस्ड हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाजमी पता होना चाहिए। एंड द आंसर इज 1918। जी हाँ, इससे पहले भी इस पिक्चर में आपको दिखा चुका हूँ कि ये 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में एंड हुई, तो होशियार रहो। 53. वर्ल्ड वॉर टू वाज बिगन इन डैश ईयर। एंड द आंसर इज 1939. 54. वर्ल्ड वॉर टू वाज एंड इन डैश ईयर। And the answer is 1945. 55. The world's deadliest conflict was dash. The answer is World War II, जिसमें 70 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और ये सब कुछ हुआ इस हिटलर की वजह से, जिसने अपनी जाती दुश्मनी की वजह से जर्मन के खिलाफ जंग बंदी से इनकार कर दिया और जिसके नतीजा में इतनी जानों का ज़या हो और 70 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवाई। 57. The atomic bomb was dropped on the city of Nagasaki on dash date. The answer is 9 August 1945. इसमें मरने वालों की तादाद 39,000 से ज़्यादा थी और इंजर्ड 25,000 से ज़ायद थे, और ये यूएस ने जापान की एक सिटी में फेंका था, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज जापान दुनिया के काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुमार होता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह के हालात से उसने अपने आप को कैसे निकाला, और आज के दौर में जापान कुछ ऐसा दिखता है। यू कैन ऑल्सो सी द फ्लैग ऑफ यूएस। 56. डैश वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। एंड द आंसर इज लिटिल बॉय। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 66,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 69,000 पीपल्स इंजर्ड हुए। ये बॉम्ब ब्लास्ट 6 अगस्त 1945 को यूएस की जानिब से हिरोशिमा पर किया गया, जिसका नाम लिटिल बॉय था, और इस लिटिल बॉय की पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के दौर में हिरोशिमा कुछ ऐसा दिखता है। 58. डैश वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी। अगर आप वीडियो में पूरी तरह फोकस्ड हैं तो इसका जवाब भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। And the answer is Fat Man. 59. The capital of Saudi Arabia is dash. The answer is Riyadh. 60. The currency of Qatar is dash. The answer is Riyal. Question number 61. Organization of Islamic Cooperation (OIC) was founded on dash date. And the answer is September 25, 1969. इस कॉर्पोरेशन का क्याम क्यों रखा गया और क्या वजह पेश आई, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पास्ट में एक इजरायली शख्स ने मस्जिद अक्सा में आग लगाने की कोशिश की, तो इस तरह के मजहबी वाक़यात की रोकथाम के लिए 1969 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (OIC) का क्याम रखा गया।
बाद इजरायली हुकूमत ने इस शख्स को पागल करार देकर अपने मुल्क से निकाल दिया। इस कॉरपोरेशन का पहला इजलास 1970 में जद्दा के मुकाम पर किया गया। स्टार्ट में इसके मेंबर्स की तादाद 30 थी, लेकिन अब इसके मेंबर्स की तादाद 57 हो गई है। कौन कौन इस कॉरपोरेशन का हिस्सा है और उसने कब ज्वाइन किया, आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 62. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज फाउंडेड ऑन डैश डेट। एंड द आंसर इज 27 दिसंबर 1945। IMF असल में एक अदारा है जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करता है, लोन देता है, और पाकिस्तान ने भी IMF का बहुत ज़्यादा लोन पे करना है। 63. द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA वाज फॉर्म्ड इन डैश डेट। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा का क़याम कब किया गया? एंड द आंसर इज 1958। 31 जनवरी 1958 को नासा ने अपना पहला मिशन एक्सप्लोरर 1 स्पेस में भेजा, जिसका मकसद गैलेक्सी को एक्सप्लोर करना था, जो कि कामयाब हुआ। और इस मिशन की कामयाबी की बदौलत नासा आज कई स्पेस सैटेलाइट्स स्पेस में भेज पाया है। 64. 8 मार्च इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज डैश डे। एंड द आंसर इज वुमेन्स डे। क्या आप जानते हैं वुमेन्स डे है क्या और ये क्यों मनाया जाता है? 20 जून 1908 को न्यूयॉर्क शहर में कुछ औरतों ने मिलकर वर्किंग आवर्स कम करने और वोट देने की मांग की। वुमेन्स डे का आइडिया क्लारा नाम की एक औरत को आया, जिसने अपना ये आइडिया 1910 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वर्किंग वुमेन में दिया। इस कॉन्फ्रेंस में 17 ममालिक की 100 औरतें शामिल थी, जिनको इसका आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, और फिर इसके बाद दुनिया के कई ममालिक में वुमेन्स डे मनाया जाने लगा, और आज 8 मार्च को पूरी दुनिया में वुमेन्स डे मनाया जाता है। 65. 22 मार्च is observed internationally as Dash Day. The answer is World Water Day. इस दिन का मकसद पूरी दुनिया में लोगों को पानी की अहमियत से आगाह करना है। 66. 7th April is observed internationally as Dash Day. And the answer is World Health Day. 7th April is also marks the day of establishment World Health Organization WHO. It is a global health awareness day under the sponsorship of WHO as well as other related organizations. 67. Dash made the design of Pakistan's first stamp ticket. And the answer is Abdur Rahman Chughtai. 1 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपनी पहली स्टाम्प रिलीज की। 68. Pakistan's national flag was prepared by Dash personality. And the answer is अमीरुद्दीन खिदवी। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये फ्लैग आज़ादी के सिर्फ 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को बनाया गया। 69. Pakistan's first coin was issued on Dash date. And the answer is 3rd January 1948. 70. Largest museum in the world is in Dash country. And the answer is USA. लोव नाम का ये म्यूजियम पेरिस में वाक़ है। इस म्यूजियम की सिर्फ गैलरीज का रकबा 72,735 मुरब्बा मीटर है, जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा म्यूजियम है। 81. Dash many white stars are on the national flag of USA. And the answer is 50. जी हाँ, USA के इस फ्लैग पर टोटल स्टार्स की तादाद 50 है। 82. क्या आपको पता है चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं? Dash many squares has a chess board. And the answer is 64. चेस बोर्ड में टोटल 8 रोज और 8 कॉलम होते हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो टोटल 64 स्क्वायर्स बनते हैं। 83. ANSA is the news agency of Dash country. And the answer is Italy. इटली का फ्लैग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मुल्क में पिसा टावर बेहद मकबूल है, और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह शोहरत इसका टेरा होना है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। 84. 2010 में फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता?
एंड द आंसर इज स्पेन। और स्पेन का फ्लैग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की है। तारिक बिन ज़ियाद ने जब अपनी फौजें स्पेन में उतारी तो उसने अपनी कश्तियां जला दी और ये अजीम फिक्रात बोले, या तो लड़ो या जामे शहादत नोश करो। और उनके सिर्फ इस जुमले की वजह से उनको फतह हासिल हुई, क्योंकि सिपाहियों के मन से ये ख्यालात निकल चुके थे कि वो वापस घर जा सकते हैं। और आज जब यहाँ ये कोई जुमला बोलता है कि मैं अपनी कश्तियाँ जला कर आया हूँ, तो ये जुमला इस अजीम लीडर की अक्कासी करता है। जब मुसलमानों ने इसको फतह किया तब इसकी हालत बहुत ही खस्ता हाल थी। मुसलमानों ने यहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाई और इसका नाम उंदलस रखा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमत यूं गफलत का शिकार हुई कि 1236 में ईसाइयों ने कुर्तबा शहर पर कब्जा कर लिया और जामिया कुर्तबा जैसी अजीम दरसगाह को, जहां दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने आते थे, उसको एक गिरजाघर में तब्दील कर दिया। और आज उंदलस पूरी दुनिया में स्पेन के नाम से जाना जाता है। 85। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे कहाँ वाक़ है? द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड इज डैश। एंड द आंसर इज ट्रांस कनाडा। ये हाईवे पैसिफिक ओशियन से विक्टोरिया सिटी से स्टार्ट होता है और अटलांटिक ओशियन में एस्टी जोन सिटी तक जाता है, जिसकी टोटल लंबाई 7,821 किलोमीटर है। कनाडा का खूबसूरत फ्लैग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस मुल्क का सबसे मशहूर खेल आइस हॉकी है। 86। द कंट्री आल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ कॉपर इज डैश। एंड द आंसर इज ज़म्बिया। ज़म्बिया जिम्बाब्वे के साथ वाक़ है। इस मुल्क का फ्लैग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 87। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले सूरज किस मुल्क में निकलता है? द कंट्री कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। एंड द आंसर इज जापान। यू कैन आल्सो सी द फ्लैग ऑफ जापान। और सुमो रेसलिंग जापान का सबसे मकबूल तरीन खेल है। 88। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री इज डैश। एंड द आंसर इज रशिया। रशिया ने सिर्फ 20 में 19 मिलियन कैरेट्स डायमंड निकाला। आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं ये असल में एक घड़ी की फोटो है जो सिर्फ 260 कैरेट्स की है। ये घड़ी आप मिस्टर जैकब के हाथों में देख सकते हैं। असल में ये शख्स मिस्टर जैकब एंड कंपनी के ओनर हैं। ये कंपनी दुनिया भर में एक्सपेंसिव वॉच बनाने के लिए मशहूर है और इसकी प्राइस 18 मिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी 3 बिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया कितना अमीर तरीन मुल्क है। और आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया का 30% डायमंड सिर्फ रशिया से निकलता है। इस ग्राफ के थ्रू आप बाकी कंट्रीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। 89। क्या आप जानते हैं दिल्ली की पहली वुमेन सुल्तान कौन थी? डैश वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। एंड द आंसर इज रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान को दिल्ली की पहली और आखिरी वुमेन सुल्तान होने का एजाज हासिल है। 90। डैश वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स। एंड द आंसर इज पर्शियन। होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। गाइज वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें एक अप्रिसिएशन मिलती है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगली वीडियो बनाने का हौसला पैदा होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।